Acha, I think we are live. Let's just wait for some comments to come in. Hello, ji. Assalamu alaikum, everyone. This is Moise with you today. I'll be hosting this session on Google PPC. Let's just wait for others so that we can start this session right away. And our guest with us today is Saqib Arshad Qureshi, who has almost more than 7 years of experience heading digital department. He has worked with companies such as MyCard, Code Labs, IO Digital, and right now I think Saqib, you're working with TCS right now. So it'll be really अगर थोड़ा बहुत आप जो है ना अपने बारे में बताते चलो कि what has your journey been in digital. So yeah. Okay. So first of all, thank you for having me. So as you have already mentioned, back in 2017 from mycard.pk, which was the online grocery store. Apne time ka, it was a pioneer in the online grocery store. So I started my journey in the digital domain as a marketing executive. I worked there around 2 to 3 years, and I've been into the website management. I've been into the Facebook ads, Google ads, and etc. Then after spending quite a handsome time over those at MyCard, I switched to one of the software. Let's just wait for a moment. Let Saqib come back. आप लोग प्लीज अपने जो है ना क्वेश्चंस रेडी रखें. This session is specifically on Google Ads, Google PPC, as you know. आप लोग को पता है कि मीडिया बाइंग जनरली एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें डिजिटल स्पेस में सबसे ज़्यादा हाई टिकट लोग फ्रीलांसर्स जो है ना अपने ये पर्टिकुलर स्किल सेट सीख कर अपने आप को publicize करें तो they can earn well over $1,000, $2,000, $3,000 depending on how experienced they are or what kind of portfolio they have. So we have Saqib back with us. Ji Saqib, so continue from where you left off. Okay, sorry for the internet issue. So I started my journey in 2017. I started it from the MyCard. MyCard was an online grocery store. It was a pioneer in online e-commerce site. So I worked there around 2 to 3 years. I started as a marketing executive. मैं वहाँ पे वेबसाइट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट की लिस्टिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, रिपोर्टिंग इसके ऊपर काम करता रहा. Then I after spending around 2 to 3 years, I switched to one of the software house, Code Labs. I spent there 2 years, I guess. I was working as a digital marketing strategist. It was mainly a B2B business जिसके ऊपर हमें clients की leads generate करनी पड़ती थी in order to promote our services and etc. So it was mainly on Google and etc. Then I moved into IO Digital. I worked as in the agency side as well to understand how the client side and the agency side work together. I worked over higher marketing. I spent around 1.5 crores on digital only for hire. Then I worked over Transworld के ऊपर भी मैंने काम किया, उसकी campaigns भी run की, 18 real estate उसकी campaigns पे भी काम किया. So it was all about my journey at IO Digital. Then I've moved into TCS. Now I'm currently working at TCS as a manager digital growth, जहाँ पे मैं इनके 2 e-commerce ventures को लीड कर रहा हूँ, जिसके अंदर एक गिफ्टिंग सॉल्यूशन है, एक फैशन रिटेल स्टोर है. सो आई एम वर्किंग विद द TCS फॉर पास्ट 7 to 8 months now. So yeah, that's a brief about me. अच्छा, okay, great. अच्छा, so guys, just so you all know, साकिब जो है ना, ये अच्छा जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं और या जो
थोड़ी देर से करे हुए हैं, लेकिन दे हैव सॉर्ट ऑफ नॉट एग्जैक्ट आइडिया व्हाट द सेशन इज अबाउट. अगेन गोइंग बैक टू द पॉइंट, ये सेशन जो है गूगल पीपीसी, गूगल एड्स के ऊपर है स्पेसिफिकली. और आप लोग अपने क्वेश्चंस रेडी कर सकते हो. साकिब की जो प्रोफाइल है, जो पोर्टफोलियो है, ही हैज स्पेंट मोर देन 1,50,00,000, 1,70,00,000 लेट अलोन ऑन गूगल पीपीसी. सो सम बेसिक क्वेश्चंस जो मुझे पता है यहाँ पे ऑडियंस थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे इस बारे में लेके कि यार हम लोग क्या क्वेश्चन करें, सो दैट वी नो एग्जैक्टली हमारा जो जर्नी हो, हमारा स्टार्ट करने का जर्नी इन गूगल एड्स वो क्या हो. तो सबसे पहले कुछ बेसिक ऐसे क्वेश्चंस हम लोग उठा लेते हैं जो कि लोगों के दिमाग में पहले से होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल पीपीसी क्या है और इसका डिजिटल मार्केटिंग में क्या एग्जैक्ट रोल है. हाउ, यू नो, वेरी बेसिक आई नो, बट दिस गोज फॉर एनीवन who wants to get a head start and wants to have exact clarity कि गूगल एड्स या पीपीसी में स्टार्ट लेना कैसा और इसका डिजिटल मार्केटिंग में क्या रोल है. ओके, सो देखें, डिजिटल डोमेन के ऊपर बहुत सारे एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं आपको. मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा ताकि हर तरह की ऑडियंस को इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए. सो देखिए, डिजिटल डोमेन में बहुत सारे एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है. फेसबुक एक अपना खुद का एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करता है. गूगल, सिंस इट्स अ सर्च इंजन, बट उसका भी एक एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन है जिसके बारे में हम इस सेशन में बात कर रहे होंगे, विच इज गूगल एड्स. इस तरह लिंक्डइन पे भी मिल जाएगा, ट्विटर पे भी मिल जाएगा. देखिए, पीपीसी इज पे पर क्लिक कैंपेन. गूगल के ऊपर जितनी भी कैंपेन्स रन की जाती हैं, इट्स ऑल ऑफ अ पीपीसी, मतलब पे पर क्लिक. जितने क्लिक्स आएंगे उतने ही आप पे कर रहे होते हैं टू द गूगल. अच्छा, पीपीसी के ऊपर जिस ज्यादातर लोग पीपीसी को ज्यादा समझते हैं, गूगल एड्स या सर्च इंजन मार्केटिंग को कम समझते हैं. हालांकि एवरीथिंग इज द सेम. ठीक है, जो भी सर्च इंजन पे मार्केटिंग की जा रही होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ पीपीसी, और गूगल एड्स को ही इस we connected? Yeah. So पीपीसी के बारे में तो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की अब बिल्ड हो चुकी होगी. अच्छा, इसके ऊपर जर्नी किस तरीके से स्टार्ट करनी है? देखें, इसके ऊपर जर्नी इस तरीके से स्टार्ट करनी होती है कि आपको थोड़ी सी है कि गूगल एड्स के थ्रू मैंने करना क्या है, मेरा मोटिव क्या है, क्या मुझे अपने प्रोडक्ट I think Saqib, can you hear me? He'll be right with us. I think थोड़ा technical issues हो रहे हैं कुछ internet से related, so we'll be looking back into it. Just so that you guys know, यहाँ पे जब भी मैं किसी भी मीडिया बायर के बारे में सुनता हूँ तो इट्स वेरी कॉमन टू नो कि इंडस्ट्री में हमारे पास फेसबुक एडवर्टाइजर्स और या मेटा एडवर्टाइजर्स ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली. गूगल एड्स एक्सपर्ट की डिमांड इज़ फार मोर. रीज़न बीइंग बिकॉज हमारे पास इंडस्ट्री में सप्लाई कम है गूगल एड्स एक्सपर्ट्स की, और हमारे पास जो है ना एक डेफिसिट है जिसको पूरा करना है. फॉर दैट बीइंग हमें जो है ना और ज़्यादा लोग चाहिए इंडस्ट्री में. जनरली इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग चाहिए हम लोग को जो कि गूगल एड्स के जो है ना एक्सपर्ट बने, एंड ताकि वो जो एक हमारे पास एरिया है वो फिल आउट होते हुए नजर आए. जी साकिब. जी, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि गूगल और फेसबुक के बारे में लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम गूगल को ही क्यों एज अ एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन समझें. सो गूगल का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको गूगल पे वाइडर ऑडियंस की रीच मिलती है. गूगल इट्स अ लार्जेस्ट सर्च इंजन जिसके ऊपर लोग सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं. इस तरह और भी सर्च इंजन है, लेकिन गूगल इज़ द वाइडली यूज्ड अक्रॉस द ग्लोब, तो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपको ऑडियंस मिलती है. और प्लस गूगल की जो पार्टनर वेबसाइट्स हैं, जैसे YouTube हो गया, एंड्रॉइड की एप्स हो गई, सो इसका भी आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि आप वाइडर ऑडियंस के पास रीच आउट कर पाते हैं विद द मल्टीपल कैंपेन ऑप्शन. सो दिस इज द मेन डिफरेंस, और आई थिंक इसी के थ्रू लोगों को अपनी स्किल डेवलप करनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ हाई डिमांड स्किल. लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम की जो स्किल है वो डेवलप कर पाते हैं, बट वो अपने बिजनेस को जिस तरह उसका हाई पोटेंशियल है उस तक नहीं पहुंच पाते, बिकॉज दे आर अनएबल टू यूटिलाइज द गूगल
Google Ads yet. So Google Ads की स्किल को डेवलप करना इज वेरी एसेंशियल इन द अपकमिंग एरा, क्योंकि इट्स एन एरा ऑफ AI एंड द मशीन लर्निंग. तो गूगल की अब इस तरह की कैंपेन्स भी आ गई हैं जिसके यू हैव टू एंटर ओनली मिनिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड बाय गूगल मशीन लर्निंग by themselves. तो उसके ऊपर आपको बहुत एक्साइटिंग बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. So yeah, that's how you should plan the journey to Google. साकिब, एक सवाल एज ए मीडिया बायर, एज समवन जो यहाँ पे मीडिया बायर्स बैठे हुए होंगे और काफ़ी लोग जो मीडिया बायर्स नहीं होंगे वो इस स्किल को एक्सप्लोर करना चाह रहे होंगे. They would like to know how different is actually Google PPC compared to all the other platforms such as Facebook or Instagram, या उनसे एक. That's my first question. And the second one, वो इसी में कैटर आप कर लीजिएगा कि why do we see कि हमारे पास मेटा एडवर्टाइजर्स जनरली बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास गूगल PPC एडवर्टाइजर्स कंपैरेटिवली बहुत कम है, उनकी सप्लाई वैसे भी जनरली देखी जाती है कम है. तो क्या हमारे पास इधर डिमांड ज़्यादा है या क्या रीज़न है कि वो सप्लाई इतनी कम है कि जनरली इज इट relatively difficult to learn skill compared to Facebook or Meta? इस पे क्या ख्याल है? ओके, देखिए मुइज, ऐसा नहीं है कि गूगल एड सीखना इज़ वेरी डिफिकल्ट कंपेयर टू मेटा या फेसबुक इंस्टाग्राम की एडवर्टाइजिंग. अच्छा, लोग ज़्यादा परेशान सिर्फ इस वजह से हो जाते हैं कि फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग और फेसबुक का जो एड सोल्यूशन है वो बहुत यूज़र फ्रेंडली है, बहुत आसानी से उसके अंदर कैंपेन सेटअप की जा सकती हैं. गूगल का जो डैशबोर्ड होता है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखता है, हालांकि वो होता नहीं है. उसके ऊपर थोड़ी सी आपको चीज़ें जो हैं वो सेटिंग्स आपको तरीके से करनी पड़ती हैं. ऑप्टिमाइजेशन के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, एड क्वालिटी स्कोर मेंटेन करना पड़ता है, कीवर्ड की रिसर्च करनी पड़ती है. सो ये वाली सारी चीज़ें जो है इसकी वजह से लोग घबराते हैं और वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ही एडवर्टाइज कर लें. लेकिन एज यू सेड कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि एज आई सेड अर्लियर कि गूगल के ऊपर आपको ऑडियंस की रीच बहुत एक्सटेंसिवली मिलती है जितना आपको अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलती. इसी की वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग सप्लाई नहीं कर पाते, इस स्किल को डेवलप नहीं करते, इस वजह से इसकी सप्लाई बहुत कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो हम उसको इस तरीके की वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको नहीं सीखें. नहीं, ऐसा नहीं है. इट्स वेरी इजी टू लर्न. उसको थोड़े उसके स्टेप्स होते हैं, उसके प्रोसीजर्स होते हैं जिनको एक एक करके समझना पड़ता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि सर्च कैंपेन लर्न करने के लिए आपको कीवर्ड की रिसर्च आनी चाहिए. सो दिस इज द फर्स्ट एंड बेसिक टूल जो आपको यूज़ करना आना चाहिए. इफ़ यू आर गुड विद कीवर्ड रिसर्च, आप अपनी सर्च कैंपेन को बहुत अमेजिंगली रन कर सकते हैं. ठीक है, आपको सिर्फ थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए एंड you can work on Google और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं. अच्छा सही. अच्छा साकिब, अगेन मैं एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करूंगा, उसमें ये कि ताकि ऑडियंस और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग से कनेक्ट कर पाए. जो तकरीबन 70-80 लोग अभी बैठे हुए हैं, दे वुड लाइक टू नो. हम लोग बहुत बार क्या होता है, बिकॉज हम लोग का बैकग्राउंड रहा है इस फील्ड में 7-8-10 साल का, तो हम बहुत तरह के जार्गन्स यूज़ कर जाते हैं जो कि नॉर्मली लोगों को समझ नहीं आते या कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, एंड दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि हम क्या बात कर रहे हैं. तो उसके लिए मुझे बताएं, जो आपने बात बोली कि एक तो आपने बोला कि सर्च कीवर्ड्स का क्या रोल है, मतलब हाउ यहाँ पे कीवर्ड्स क्या रोल प्ले कर रहे होते, दैट्स वन. एंड नंबर 2, हमारे पास जैसे फेसबुक पे बड़ा सिंपल है. फेसबुक पे जब हम जाते हैं तो हम प्लेसमेंट्स पे चले जाते हैं और फिर हमारे पास फेसबुक ने इन्वेंट्रीज दी भी होती है कि राइट कॉलम एड्स हैं, तो न्यूज़ फीड्स एड्स हैं, तो ट्रू प्ले एड्स हैं और वीडियो एड्स हैं, ये है वो है. हमारे पास इसमें कौन सी मेन 3-4 कैटेगरीज हैं जिसपे और उस पे लोग किस तरह से मतलब फॉर एग्जांपल मैं बता रहा था, फेसबुक की खास इन्वेंट्रीज होती हैं जो अवेयरनेस के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं, कुछ होती हैं जो कन्वर्जन के लिए ज़्यादा अच्छी होती है. तो उस तरह से हमारे पास गूगल में वो क्या चीज़ है. तो एक तो पहला सवाल ये कीवर्ड वाला कि कीवर्ड का क्या रोल है इन गूगल एड्स रिसर्च में. मतलब क्या इसमें क्या हम ये बोल सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली ये एक ऐसा एरिया जिसमें से यहाँ पे अगर आप बंदा अपना होमवर्क ज़्यादा बेहतर कर ले तो यहाँ पे बंदा जो है ना अपनी बात बेहतर तरह से कैंपेन चला सकता है. सेकंड एरिया जो मेरा था वो था
कि इन्वेंट्रीज और मेन कैटेगरीज कौन सी जहाँ पे हम किस तरह की कैंपेन्स रन कर सकते हैं। तो ये ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। देखिए, कीवर्ड रिसर्च आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हम मार्केटिंग जार्गन्स को यूज करें, तो मैं आपको और आसान कर देता हूँ। देखिए, कीवर्ड रिसर्च एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके ऊपर आपको अपनी सर्च कैंपेन्स को रन करना पड़ता है। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा कि अगर आप सर्च इंजन पे जाके गूगल के ऊपर जाके टाइप करते हैं कि रेस्टोरेंट नियर मी और आप एक रेस्टोरेंट के ओनर हैं, ठीक है, तो एक मैं एज अ यूजर आके सर्च करता हूँ रेस्टोरेंट्स नियर मी या फास्ट फूड रेस्टोरेंट नियर मी। अब आप एज अ एडवर्टाइजर आप ये चाहेंगे कि जब भी इस टाइप का कीवर्ड या इस टाइप की क्यूरी इंसर्ट की जाए तो मेरा एड सबसे टॉप ऑफ द पेज दिखे ताकि मेरे पास ट्रैफिक आ सके। इसको कहते हैं कीवर्ड रिसर्च के कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से इतना मैच करते हैं जिसके ऊपर आप बिड कर सकते हैं। बिड करना मतलब आप उसके ऊपर पैसे लगा सकते हैं ताकि आप उन स्पेसिफिक क्यूरीज या कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सके और उसके ऊपर आपका एड शो हो सके। तो इसको कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च क्यों एसेंशियल है, कीवर्ड के बारे में जानना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि गूगल की जो सर्च कैंपेन, इट्स वन ऑफ द टाइप ऑफ गूगल एड्स, जो सर्च कैंपेन्स होती हैं वो पूरे की पूरी डिपेंडेंट होती हैं कि कितनी अच्छी आपने रिसर्च की है कीवर्ड्स की और कौन कौन से रेलेवेंट और हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स के ऊपर आपने अपना एड प्लेस किया है। क्या पता कुछ लोग ऐसे होंगे, जैसे अगर मैं रेस्टोरेंट की एग्जांपल लूं, कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो लिख रहे होंगे रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रेस्टोरेंट नियर एयरपोर्ट XYZ, इतना बड़ा कीवर्ड डाल रहे होंगे लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत कम होगा। अब आपकी कोशिश ये होगी कि इस कीवर्ड के ऊपर मैं इतना पैसा नहीं लगाऊं, क्योंकि इस कीवर्ड के ऊपर अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो बहुत नैरो ऑडियंस है जिसको मैं टारगेट कर सकूंगा। मैं थोड़ा मिड रेंज, मतलब ना ज्यादा ब्रॉड कीवर्ड हो ना ज्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड हो, मिड रेंज के कीवर्ड्स के ऊपर अपनी बिड करूं ताकि मेरा एड अपीयर हो। तो ये बात तो हो गई कीवर्ड रिसर्च की। और कीवर्ड रिसर्च किस तरह की जाती है, उसके मल्टीपल टूल्स हैं और गूगल खुद अपना एक कीवर्ड प्लानर है, उनका एक टूल है जो बिट इन गूगल एड्स के ऊपर बिल्ट इन है, जिसके ऊपर आप पूरी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। तो ये तो हो गई आपकी पहला क्वेश्चन। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा ऑडियंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या इन्वेंट्रीज हैं, जैसे फेसबुक की आपने बताई कि राइट कॉलम होता है, इन फीड होता है, इन वीडियो होता है, XYZ। तो गूगल की जो प्लेसमेंट्स होती हैं देयर उसकी भी बहुत मल्टीपल टाइप्स हैं। फर्स्ट, आपको सर्च इंजन के ऊपर उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप ऑफ द पेज मिलते हैं, बल्कि आप उसको स्क्रॉल करेंगे पेज को तो आपको 5th या 6th पोजीशन के ऊपर भी आपको एड्स की प्लेसमेंट मिल जाती है। सो फर्स्ट है सर्च इंजन के ऊपर मिलती है। फिर आप कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, जो कि गूगल का एक और प्लेटफॉर्म है, जो टूल है गूगल एडसेंस के साथ जो भी लिंक्ड हुआ होता है। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, आप उसकी साइड पे टॉप पे या कोई भी पेज स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वहां पे आपको बैनर्स दिखते हैं या आपको टेक्स्ट प्लेसमेंट्स दिखती हैं, तो वो भी गूगल एड्स के थ्रू रन हो रही होती हैं। तो गूगल की एक इन्वेंट्री ये हो गई कि जो भी गूगल की पार्टनर वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर भी आप अपने एड्स को प्लेस कर सकते हैं। थर्ड क्या होता है, गूगल का एक बहुत हाईली यूज्ड प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ऊपर जो भी एड्स रन होते हैं, जब आप यूट्यूब को एक्सप्लोर करते हैं, जब आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं, तो आपको वीडियो के बीच में एक ऐड अपीयर होता है जिसको स्किपेबल एड्स भी कहते हैं और नॉन स्किपेबल। स्किपेबल मतलब आप जिसको स्किप कर सके, नॉन स्किपेबल जिसके ऊपर स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा हो। कुछ प्रीमियम इन्वेंट्रीज होती हैं जिसके ऊपर आपको बाय करना पड़ता है, अदरवाइज आप गूगल एड्स के थ्रू ही यूट्यूब के ऊपर आप अपनी एडवर्टाइजिंग स्पेसिफिकली वीडियो एड्स को रन करते हैं। तो ये सारी चीजें तो हो गई। एक और आपको प्लेटफॉर्म कौन सा मिलता है, एंड्रॉइड की एप्स। ठीक है, एंड्रॉइड आप जब भी कोई गेम खेल रहे होते हैं, कुछ वीडियो स्ट्रीम कर रहे होते हैं, तो आपको एकदम से अपना एक एड अपीयर हो जाता है। वो कभी कभार इरिटेटिंग भी होता है, मोस्ट ऑफ द यूजर, मेरे लिए भी बहुत इरिटेटिंग होता है, बट एक इन्वेंट्री भी आपको मिल जाती है। फिर आपको एक डिस्कवरी, इनका एक चैनल है, जब वो ज्यादातर आपको कब मिलता है, जब आप इफ यू आर एंड्रॉइड यूजर, आप अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पे आके लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपको जो एक पूरा एक स्क्रीन मिलता है जिसके ऊपर आपको आपकी मर्जी के मुताबिक आपको न्यूज या आपकी जो भी इंटरेस्ट आप जाते हैं कि उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, उसके बीच में भी जो आपको एक एड्स कुछ दिख रहे होते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स लिखा हुआ होता है उसके ऊपर मेनली, तो वो भी एक इन्वेंट्री टाइप है गूगल की। अच्छा, ओके, जबरदस्त।
इससे रिलेटेड अब मैं जो नेक्स्ट सवाल करूंगा ना वो ये है कि देखें, आपका और मेरा एक एक्सटेंसिव जॉब एक्सपीरियंस भी रहा है, एट द सेम टाइम हमारे पास फ्रीलांसर्स भी हैं और बिजनेस ओनर्स भी हैं। क्या आप मुझे ये तीनों एंगल में बाइफिकेट करके बता सकते हैं कि तीनों को क्या फायदा है? फॉर एग्जांपल कि अगर एक बंदा सोचता है कि यार मैं आज मीडिया बायर बनूंगा एज अ गूगल पीपीसी एक्सपर्ट, तो उसकी कैरियर ग्रोथ क्या है, और वो ऑन एन एवरेज, एंड ऑब्वियसली इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि वो डेफिनेट अमाउंट क्या कमा रहा होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज वो कहाँ से लेके कितने साल में कहाँ तक पहुंच सकता है इन टर्म्स ऑफ इज अर्नड इनकम पर मंथ। एंड सेकेंडली, फ्रीलांसर जो है उसका क्या स्कोप हो सकता है इसमें। और ऑब्वियसली द थर्ड है वो है कि ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स जो हैं देयर स्टिल, मैं बोलूँगा कि फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रन एड्स, बट अगर वो बिकॉज वो ज़्यादातर एक बहुत ज़्यादा एक हाइप सी है कि नहीं यार टिकटॉक पे चले जाओ तो फेसबुक पे चले जाओ, अभी भी लोगों को नहीं है अंडरस्टैंडिंग। एंड आई गेस उसका रीज़न ये है, जिस पे मेरा नेक्स्ट सवाल होगा अभी, कि कीवर्ड को थोड़ा सा अगर उसके ऊपर मजीद और अगर हम डिग इन करते हैं, जिसमें फ्रेज मैच हो गया, एग्जैक्ट मैच हो गया, ये हो गया, सारी चीजें उसके ऊपर बाद में आऊंगा। तो पहले बस आप डिस्कस देखिए इन तीनों कैटेगरी हैं, ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स एंड जो लोग जॉब करना चाह रहे हैं एज अ मीडिया बायर, स्पेसिफिकली एज अ गूगल एड स्पेशलिस्ट, उनके लिए क्या कैरियर ग्रोथ है। ठीक है, चलें मैं इसको इस तरह से समराइज करता हूँ। देखिए, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फ्रीलांसर, अब अगर कुछ लोग फ्रीलांसिंग की सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप फ्रीलांस कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या आप सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं किसी क्लाइंट का, तो फ्रीलांसर के लिए ये जर्नी इस तरीके से हो सकती है कि अगर आपने गूगल एड्स की स्किल को डेवलप कर लिया तो आपके ऊपर एक एड ऑन एडवांटेज आ जाएगा, आपको एक एडेड बेनिफिट आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं कि मैं कंटेंट भी क्रिएट कर सकता हूं, मैं आपके लिए सोशल मीडिया मैनेज भी कर सकता हूं, और मैं आपके गूगल एड्स भी रन कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। मैं मल्टीपल कैंपेन टाइप्स भी मैंने रन की हुई हैं, मैंने इतने बजट्स के ऊपर काम किया हुआ है, मैंने इस टारगेट ऑडियंस पे काम किया हुआ है। तो फ्रीलांसर के लिए एक एडेड बेनिफिट बन जाता है कि वो आप गूगल की सर्विसेज प्रोवाइड करें। जैसे हमने ऑलरेडी बात करी कि ये हाईली डिमांड स्किल है। अगर हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी जाके देखें कि फाइवर या अपवर्क के ऊपर कितनी डिमांड है ये स्किल की, कि गूगल एड्स किसी क्लाइंट को रन करने हैं इन यूएस, कनाडा एक्सेट्रा, और उसके ऊपर लोग कितना चार्ज करते हैं। ठीक है, तो एज अ एग्जिस्टिंग फ्रीलांसर, अगर आप ऑलरेडी एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक स्किल एज अ एड ऑन बेनिफिट हो सकता है फॉर योर क्लाइंट्स। मूविंग ऑन, कि अगर आप एज अ पीपीसी स्पेशलिस्ट ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप इस स्किल को पॉलिश कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक दफा गूगल एड्स का कोई भी कोर्स पढ़ लिया हो या कोई भी स्किल डेवलप कर लिया हो, यूट्यूब से देख लिया हो, तो गूगल बस उसी तरीके से चल रहा है। गूगल हर साल उसके मैकेनिज्म, उसकी कैंपेन टाइप्स, उसके एल्गोरिथम्स मल्टीपल टाइम्स चेंज हो रहे होते हैं, और आपको अप टू द ट्रेंड रहना पड़ता है कि किस तरीके से आप काम किया जाए। जैसे पास्ट 2-3 ईयर्स पहले ही चले जाएं तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन वाज नॉट वाइडली यूज्ड। ठीक है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ गूगल। परफॉर्मेंस मैक्स होती क्या है, मैं ब्रीफली बताता हूँ कि वो मशीन लर्निंग या एआई बेस्ड पे होती है। आप सिर्फ अपने थोड़े से कीवर्ड्स देते हैं, हेडलाइंस देते हैं, डिस्क्रिप्शंस देते हैं, कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोस देते हैं। अब परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन आपको खुद ही आपकी ऑडियंस के हिसाब से क्लब करता है रिजल्ट्स को, और जो कस्टमर को देखना का शौक है वो उस टाइप के रिजल्ट्स को विजिबल करता है। ठीक है, तो ये एक तरीके की कैंपेन टाइम है। अगर आप ऑलरेडी पीपीसी स्पेशलिस्ट हैं तो आपको इन ट्रेंड्स के बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए और किस तरीके से आप इसको पॉलिश कर सकते हैं। रही बात कि आपने कहा कि किस रेंज से लेके किस रेंज तक आप इससे अर्न कर सकते हैं, तो देखें, अगर आपने नई गूगल एड्स की स्किल को डेवलप करी है, इफ यू आर अ न्यूबी, अगर आप बिगिनर हैं, तो यू कैन अर्न अप टू $300 to $500 a month just by promoting your client's product or services on Google Ads। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं इसलिए। अगर आप इसके ऊपर इस स्किल को डेवलप करते हैं, आपका पोर्टफोलियो अच्छा मैनेज हो जाता है, और आपने कम से कम भी 2-2.5 साल गूगल एड्स के ऊपर स्पेंड कर दिए हैं और अच्छा अमाउंट स्पेंड कर लिया है, तो आप सिंपलर वर्ड में स्काई इज द लिमिट। ठीक है, आप
जितना भी चाहे बना सकते हैं, लेकिन अगर एज एक एवरेज नंबर कोट करूं तो यू कैन अर्न अप टू $2,000 अ मंथ फॉर श्योर। ठीक है, आप इतना आराम से आप गूगल एड्स के थ्रू बना सकते हैं। लास्ट आपने पूछा कि बिजनेस ओनर्स, जो ई कॉमर्स ओनर्स हैं, जो अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या बेनिफिट है? देखें, ई कॉमर्स को आपको एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल के थ्रू प्रमोट करना पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपने प्रमोट कर दिया तो आपका रिजल्ट्स आपको आने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू टारगेट, यू हैव टू टच एवरी पॉइंट ऑफ कस्टमर, कि जहां जहां भी कस्टमर आपका या टारगेट ऑडियंस अवेलेबल है, आप उनको वहां से गैदर करें। सो गूगल, एज आई सेड अर्लियर, कि गूगल के ऊपर आपको वाइडर ऑडियंस की रीच मिलती है, आपको मल्टीपल ऑडियंस की टारगेटिंग ऑप्शंस मिलते हैं। तो ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए इस स्किल को समझना या इस स्किल को डेवलप करना बहुत एसेंशियल है। ठीक है, जबरदस्त। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, इसमें अब एक कुछ और सवाल भी लोगों के भी आ रहे हैं, अभी मैं वो भी ले लेता हूँ। इसमें जैसे आपने बोला परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन इज लाइक, इसको टाइम हो गया, लेकिन दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ आई आल्सो सी have witnessed that a lot of Google PPC experts are adopting to this particular strategy के performance max campaigns पे वो चीज़ों को automate कर रहे हैं। इसमें कुछ आप ये हाईलाइट कर सकते हो कि अगर हम कोई भी एडवर्टाइजर है, ये मैं ई कॉमर्स ओनर्स के लिए मैं के बिहाफ पे सवाल कर रहा हूँ मैं, और अगर उसके पास फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का बजट है, या मैं बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू एक सवाल कर रहा हूँ कि अगर 1 लाख रुपए का बजट है, विच इज ऑब्वियसली इज एक्सट्रीमली लो, बट एक आइडिया लगा लेते हैं, तो हम को ऑब्वियसली एज अ मीडिया बायर, एज अ मार्केटर, हम लोग को सिर्फ अपने आप को एक प्लेटफॉर्म तक महदूद नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने 1 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का, जो भी आप इसमें फिगर लेना चाहो, अगर मैं बजट ले रहा हूँ, तो उसमें मैं, अच्छा ये ऑडियंस के लिए एक नई चीज होगी, लेकिन अगर आप इसमें साथ ही साथ सवाल का जवाब देते चलो तो अच्छा हो जाएगा। टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल में मैं किस तरह से बाइफिकेट करूंगा, कि मतलब 1 लाख रुपए में से कितना बजट मुझे जो है ना रखना चाहिए फॉर अवेयरनेस, फिर उसके बाद जो है ना उसमें से कितना परसेंटेज मुझे जो है ना बजट रखना चाहिए तो कि मैं मजीद अपनी ऑडियंसेस को नर्चर करूं, ठीक है, और फिर उसमें से कितना बड़ा बजट मेरा जाना चाहिए कि मैं एक परसेंटेज रखूं जो कि मैं रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग या लोगों को फिर कन्वर्ट करवाना शुरू कर दूं, बिल्कुल एट द टॉप ऑफ योर हेड। ठीक है, तो देखें, जैसे आपने कहा कि ये जो अगर आपने बताया कि बजट 1 लाख है या 5 लाख है देखें, ऐसा नहीं है कि मिनिमम बजट के साथ काम नहीं किया जा सकता, बट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स, स्पेसिफिकली गूगल के ऊपर ये होता है कि द मोर इट इज द बेटर इट इज। जितना आप ज्यादा स्पेंड करेंगे, जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने लग जाते हैं। अच्छा, आपने बात करी कि क्या अगर इसको बॉटम ऑफ द फनल, मिड फनल या टॉप फनल में किस तरह बाइफरकेट करें, तो एक एग्जाम्पशन ले लेते हैं कि आपका एक न्यूली स्टार्टेड, आपने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है, उसके बारे में अभी ऑडियंस बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, कुछ भी नहीं जानती, ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी कि आपने टॉप ऑफ द फनल, जहाँ पे आप अवेयरनेस कर रहे होंगे, जहाँ पे आपको ऑडियंस को बताना होगा कि मैं इस मार्केट में मौजूद हूँ, मेरा बिजनेस मौजूद है और आपको ये तरीके के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल सकते हैं, तो आपको अवेयरनेस के ऊपर, मतलब टॉप ऑफ द फनल, ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। ज्यादा अगर न्यूमेरिकली बताऊं तो आपको 40% आपको अवेयरनेस के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप अगर इसी एग्जाम्पल पे रहते हुए आप मिड फनल पे जाते हैं, तो मिड फनल जहां पे आपको ऑडियंस को नर्चर करना होता है, एंगेज करना पड़ता है, कंसिडरेशन जिसको कहते हैं, जहां पे कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्ट लेता है, उसके ऊपर आपको ऑलमोस्ट 30% इन्वेस्ट करना पड़ता है, ताकि क्योंकि अवेयरनेस हो चुकी है, उसके बाद अब वो मिड फनल में आएगा, अब आपके प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में जान चुका है, तो अब वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सप्लोर करेगा। एंड द रिमेनिंग अमाउंट 30% वो आप रीमार्केटिंग या कन्वर्जन कैंपेन्स बॉटम ऑफ द फनल में आप इन्वेस्ट करेंगे। ये तो हो गया एक एग्जांपल, अगर आपने न्यूली वेंचर स्टार्ट किया।
अब एक ऐसे बिजनेस की बात कर लेते हैं जो कि मार्केट में स्टेब्लिश जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा ऑडियंस उसके बारे में नहीं जानती है, और उसको मुनासिब कन्वर्जन्स भी मिल जाती हैं विदाउट एडवर्टाइजिंग येट, ठीक है। तो उस बिजनेस के ऊपर स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होगी। उसके ऊपर आपको टॉप ऑफ द फनल के ऊपर 30% इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि वो अवेयरनेस थोड़ी सी डेवलप हो जाए ऑडियंस के पास, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ऑडियंस बिल्कुल न्यू है मार्केट में, उसके बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता। तो 30% अवेयरनेस पे जाएगा, 30% जो है वो एंगेजमेंट या कंसिडरेशन बॉटम ऑफ द मिड ऑफ द फनल में जाएगा, और 40% जहां पे आपको हाईली इफेक्टिव कन्वर्जन कैंपेन्स, जहां पे आपको हार्डकोर कन्वर्जन चाहिए, तो इस फनल के ऊपर, रीमार्केटिंग और कन्वर्जन वाले फनल के ऊपर, बॉटम फनल के ऊपर आपको 40% ऑफ योर बजट स्पेंड करना पड़ेगा। ओके, ठीक। सो एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेरे बहुत सारे दोस्त आके मुझसे सवाल करते हैं, आई एम श्योर कि आपके दोस्तों से भी आपसे ही सवाल करा होगा। बहुत बार क्या होता है कि गूगल और फेसबुक जो है ना, अपने प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करने की अपॉर्चुनिटी लोगों को देने के लिए कुछ ना कुछ एक कूपन बजट गिफ्ट करता है, और लोगों को इनकरेज करता है कि आके वो प्लेटफॉर्म पे एड्स चलाएं। मेरे काफी सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इस तरह से उन पर्टिकुलर कूपन्स को अवेल करा, या अपना खुद से बजट लगाया $100 $50 का। उन्होंने दे वर लाइक कि यार मैंने बजट लगाया, और एंड विद इन अ फ्यू आवर्स, मतलब मे बी 6 घंटे के अंदर अंदर $200-300 का मेरा बजट फूक गया। सो उसकी टेक्निकलिटी में तो आप जाओगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने उनको समझाया, उसको थोड़ा सा आप अगर और जबरदस्त तरीके से एलैबोरेट कर दो, तो वुड बी रियली नाइस फॉर द ऑडियंसेस हु कैन सी दिस सेशन राइट नाउ। Okay. तो मैंने बोला कि देखिए, जब गूगल एड्स करता है तो वो आपको नॉर्मली बड़ा ही यूजर फ्रेंडली एक आपको वो एक्सेस यूआई दे रहा होता है। एक वो होता है कि जिसमें उसमें मजीद आप ड्रिल डाउन कर सकते हो, मैनुअल ज्यादा एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, जिसमें आप और मैं भी जाके चीजें करते हैं। तो जो यूआई जब आप पहली बार साइन अप करते हो और जब वो आपको दे रहा होता है, उसमें आप डायरेक्टली चीजों को बस डालते हो और फिर आप ऐड चलाते हो। तो जिसमें से इशू ये होता है कि लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कोई रिसर्च नहीं करी हुई होती कीवर्ड के ऊपर, और ब्रॉड मैच जो है ना, बहुत सारे कीवर्ड्स डाल देते हैं उठा के, बस लेफ्ट राइट और सेंटर कैटेगराइज नहीं करना, चीजों को उठा के डाल दिया। और जब वो ऐड चलता है तो वो इट्स ऑल ओवर द प्लेस, और मुझे ना हर जगह ऐड दिखाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपका ऐड बजट जो है ना फौरन से पहुंच जाता है। पर थोड़ा सा ऐसे अपने ख्याल से बताइए कि न्यूबी वहां पे गलती क्या करता है, और एक थोड़ी से एक प्रॉपर अप्रोच क्या हो सकती है, ताकि people are encouraged to run ads rather than just run away from it। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। मुझे देखें, होता यह है कि हम बड़ा वो हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं जब भी गूगल की एड कैंपेन रन करने जाते हैं। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़ा सा समझ लिया और आप गूगल एड्स के एक्सपर्ट बन गए। आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको स्किल डेवलप करने में टाइम लगता है। तो आपने जैसा कहा, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मेरे साथ भी कुछ कोलीग्स ऐसे रहे जिनके साथ ये वाला एक्सपीरियंस रहा। उसके अंदर होता ये है कि यूआई बहुत अच्छा दिख रहा होता है, आप सिंपल थोड़ी इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगता है, आप इनपुट कर देते हो और आप कहते हो कि मेरी कैंपेन लाइव हो गई। अब जब आप कल आके देखते हो, आपका फॉर एग्जाम्पल बजट था $500 अ डे का, और आपने थोड़ा स्पेंड करना था समथिंग अराउंड $15,000 और $20,000, एक एग्जाम्पशंस दे रहा हूँ। तो आप कल आके देखते हैं तो वो आपका $2,000 ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हुए होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि आपने कीवर्ड की रिसर्च, अगर आपने सर्च कैंपेन रन की है तो आपने कीवर्ड की रिसर्च बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं करी। जिस तरह आपने अभी पॉइंट रेज किया कि ब्रॉड मैच कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर आपने ज्यादा पैसा लगा दिया। ब्रॉड मैच कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल जेनेरिक कीवर्ड्स होते हैं, जिसको हर कोई बंदा यूज कर रहा होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके ऊपर आपको कन्वर्जन्स मिल जाएंगी। उसके ऊपर क्लिक्स मिल जाते हैं लेकिन कन्वर्जन्स नहीं मिलती। तो एज आई सेड अर्लियर, पीपीसी गूगल एड्स काम ही उस पर करता है कि जितना क्लिक किया जाएगा उतना आपको पे करना पड़ेगा। अब वो आपकी कन्वर्जन्स तो बन नहीं रही होती क्योंकि आपने ब्रॉड कीवर्ड्स को यूज किया हुआ होता है। आपको अगर अच्छी रिसर्च करनी होती है, अच्छी कन्वर्जन कैंपेन्स बिल्ड करनी पड़ती हैं, तो आपको फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स के ऊपर जाना पड़ता है। मतलब इसके ऊपर हम कोर्स के ऊपर ज्यादा बात कर रहे होंगे, लेकिन अगर मैं ऊपर से बता दूं तो फ्रेज मैच ऐसे होते हैं जो आपकी सिर्फ ऑडियंस
को टारगेट करते हैं, ऐसी ऑडियंस को जिसको आपको टारगेट करना है और वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेट करें। आगे पीछे के सवालात या आगे पीछे की क्यूरीज उनके ऊपर क्लिक्स नहीं करती, ठीक है। और एग्जैक्ट मैच ये होता है कि जो मैं कीवर्ड के ऊपर बिड करना चाह रहा हूँ, एग्जैक्टली अगर ये कीवर्ड सर्च किया जाए कोई यूजर तो तब मेरा ऐड अपीयर हो, वरना अपीयर ना हो, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैच इस तरीके से होता है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन ये आ जाता है कि अच्छा हमने अगर ये कर लिया, इसके बाद भी हमारा जो है कैंपेन, हमारा बजट फूक जाता है उसके ऊपर, तो उसका रीजन ये होता है कि आप अपनी कैंपेन को सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे होते, मॉनिटर नहीं कर रहे होते। आपको नेगेटिव कीवर्ड्स को भी एक्सप्लोर करना पड़ता है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से मैच नहीं कर रहे होते, उनके ऊपर आपको क्लिक्स मिलने लग जाते हैं। तो आपको नेगेटिव कीवर्ड्स को भी एक्सक्लूड करना पड़ता है अपनी कैंपेन्स के ऊपर। फिर एक और चीज जो कि मूवीज अभी रिसेंटली मेरे साथ एक कुलीग ने शेयर करी, वो कह रहा है यार मैंने नेगेटिव कीवर्ड्स भी कर लिया, मैंने फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स भी, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स भी कर लिया, मेरी टारगेटिंग ऑडियंस भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा बजट जाता जा रहा है। तो उसके ऊपर रीजन ये था कि आपने प्लेसमेंट जो है वो भी ऑप्टिमाइज नहीं करी। अब आपका मोस्ट ऑफ द एड का जो बजट एग्जॉस्ट हो रहा है वो एप्स के अंदर हो रहा है, और इररेलेवेंट एप्स के ऊपर आपका क्लिक्स मिल रहे हैं। मतलब अगर आप ग्रोसरी स्टोर हैं तो आपका एड एक ऐसी ऑडियंस को मिल रहा है जो कि आपकी एक ऐसी ऑडियंस को विजिबल हो रहा है जो कि गेम खेल रही है, और गेम खेलने वाली ज्यादा ऑडियंस होगी वो बिलो 18 होगी, और उसकी जो बाइंग पावर है वो इतनी होगी नहीं। तो आपका एड ऐसी ऑडियंस को दिखना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी प्लेसमेंट्स को भी आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो बजट है वो आपके कंट्रोल में रहे। एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है कि आपने बस एक दफा बजट लगा दिया तो अब वो चलता रहेगा। आपको एडजस्टमेंट टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, इसी को कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसी तरह आपका क्वालिटी स्कोर वगैरह भी मेंटेन किया जाता है गूगल एड्स पे। जबरदस्त। ओके, आई थिंक मेरी तरफ से ये लास्ट एक क्वेश्चन और है, बिकॉज हम लोगों ने कीवर्ड के ऊपर काफी बात करी है। यहाँ पे काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ठीक है ये तो सब सही हो गया। यहाँ पे हमारे पास असल में अमेजॉन पीपीसी एक्सपर्ट्स बहुत सारे बैठे हुए हैं, क्योंकि एक्सट्रीम कॉमर्स की कम्युनिटी इज मोर लाइक अमेजॉन ओरिएंटेड ज्यादा रही है इन द पास्ट, एंड नाउ हम लोग जो है डिफरेंट स्किल्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, व्हिच इज व्हाई ऑब्वियसली यू आर हियर। कीवर्ड रिसर्च जब हम कर रहे होते हैं अमेजोन के लिए, तो वी यूज टूल्स सच एज जंगल स्काउट, हीलियम 10, ये वो सारी चीजें। what are different tools that we can use maybe to research keywords for Google PPC? Okay. इसके भी मल्टीपल टूल्स हैं पीपीसी कैंपेन्स को रन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द फोरमोस्ट इज द गूगल का इटसेल्फ जो बिल्ट इन टूल है, गूगल कीवर्ड रिसर्च टूल, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर जो कि आपको गूगल एड्स के डैशबोर्ड के ऊपर ही मिल जाता है, ठीक है। सबसे एसेंशियल टूल और सबसे इफेक्टिव टूल ही यही होता है। इसके अलावा मल्टीपल टूल्स भी हैं। सीमरश इज वन ऑफ द टूल जिसके ऊपर काम किया जाता है। उसको लोग ज्यादा एसईओ पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी आप कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हैं और उनको आप अपनी गूगल एड्स की कैंपेन के ऊपर रन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक हैरिफ करके मिलता है, अगर मैं उसको स्पेल करूं AHREFS करके एक टूल है, उसके ऊपर भी आपको कीवर्ड की रिसर्च करने को मिल जाती है। इस तरीके से मल्टीपल टूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारे टूल्स आपको फ्री ट्रायल पे भी मिल जाते हैं, इनका पेड वर्जन भी अवेलेबल है। लेकिन गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है इट्स टोटली फ्री, आपको सिर्फ अपने जीमेल से साइन अप करना पड़ता है। आप गूगल एड्स को रन कर सकते हैं और गूगल के कीवर्ड प्लानर को आप यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो मैं यूज करता रहा हूं और मेरी स्ट्रैटेजीज के अंदर जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा है वो गूगल कीवर्ड प्लानर और सीमरश की जो कीवर्ड रिसर्च में करता था। ओके, जबरदस्त। अच्छा, सो साकिब, अब हम लोग क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं, बट जस्ट सो दैट एवरीवन नोज, अगर यही सारी इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग मुझे आपसे चाहिए या ऑडियंसेस को आपसे चाहिए, तो कैन यू गिव मी सम आइडिया कि आपका कोई अपकमिंग कोई ट्रेनिंग आ रही हो, या कब है, या आप करवाते हो, कब आ रही है, थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दें, और उसमें क्या चीजें आप कवर कर रहे होगे, सब स्टफ लाइक दैट। ठीक है। सो मैं एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ, एक्सट्रीम कॉमर्स का एक डिप्लोमा ट्रैक प्रोग्राम है जो गूगल एड्स डिप्लोमा ट्रैक प्रोग्राम है, मैं उसके साथ एसोसिएटेड हूँ और वो स्टार्ट होने वाला है
उसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपको इस कोर्स के अंदर रजिस्टर होना है, सो इसकी लास्ट डेट है 28 नवंबर, जिसके ऊपर इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। ये आप अभी एक आपको बताता चलूँ, दिस कोर्स इज अवेलेबल ऑन अ डिस्काउंट, जो कि डिस्काउंट कुछ ही टाइम के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, फिर ये अपनी एक्चुअल प्राइस के ऊपर अवेलेबल होगा। कोर्स के बारे में अगर मैं ऊपर से बता दूं तो इसके ऊपर हम सिर्फ फंडामेंटल्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स के लिए आपको यूट्यूब भी मिल जाएगा, आपको अदर कोर्सेज भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरी एक्सपर्टीज, मैंने जितना काम किया है गूगल के ऊपर, वो सारी स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम बात करेंगे इस कोर्स के अंदर। सिर्फ इसके ऊपर थ्योरेटिकल कुछ नहीं होगा, बल्कि हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ऊपर भी काम करेंगे कि किस तरीके से कैंपेन को रन किया जाता है, किस तरीके से कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते हैं, किस तरीके से एनालिटिक्स को मॉनिटर करते हैं, टैग्स किस तरीके से लगाते हैं। तो ये एक कोर्स एक स्टार्ट होने वाला है और उसकी लास्ट डेट जो है वो 28 नवंबर है, जो रजिस्ट्रेशन की। अच्छा, ओके। सो बेसिकली मैं अभी आपकी उसी कोर्स के लैंडिंग पेज पर हूँ, ठीक है। एंड सो आई वाज अंडर द अजम्पशन कि मे बी सिर्फ गूगल पीपीसी के ऊपर आप बात करोगे, बट द बेस्ट पॉइंट इज कि गूगल पीपीसी गाइस, मैं आप लोगों को जनरली अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ कि इफ यू गो हैंड इन हैंड विद गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल टैग मैनेजर ना, तो ये बहुत जबरदस्त वैल्यू एडिशन हो जाता है, बिकॉज देन यू बिकम अ मीडिया बायर पैकेज स्पेसिफिकली हु हैज स्पेशलाइज्ड इन गूगल पीपीसी, ठीक है। तो द बेस्ट पार्ट इज बिकॉज आपको साकिब जो है ना गूगल पीपीसी के ऊपर ट्रेन कर रहे होंगे, साथ ही साथ में गूगल टैग मैनेजर। आप अब उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बिकॉज आई एम श्योर यहाँ पे 90% ऑडियंस को नहीं पता होगा गूगल टैग मैनेजर क्या है, 10% को पता होगा। पिक्सल ट्रैकिंग, इवेंट ट्रैकिंग एंड बहुत सारी दूसरी चीज़ों में आता है। और गूगल एनालिटिक्स टू एनालाइज योर डेटा एंड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी साकिब ट्रेनिंग दे रहे होंगे। दैट बीइंग सेड, यहाँ पे साकिब ने एक बहुत अच्छी और खूबसूरत बात वो ये करी है कि बिकॉज आई हैव डन गूगल डिजिटल गैराज, गूगल डिजिटल गुरु, ये सारे मैंने सेशंस ऑफिशियली मैरियट में भी फेस टू फेस विद गूगल लिए हैं। बट द मेन डिफरेंस ओवर हियर दैट यू सी व्हेन यू टेकिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन विद साकिब, what he is going to make sure is कि यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल या सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं कवर हो रही होगी, जो कि हो रही होगी कवर। On top of that, जहाँ पे साकिब is giving you value is कि वो आपसे live case studies और actually strategies discuss कर रहे होंगे on how to go about, and on top of that you will be like आप इनसे directly बात कर रहे होंगे during those live sessions जिनके ये जो है ना पूरे ट्रेनिंग हो रही होगी। So that's that. Let's head on to some questions that people have over here right now. साकिब, मुस्तफा जो हैं वो पूछ रहे हैं what percentage of traffic comes from mobile and how does it perform compared to other devices on Google PPC? अच्छा, आजकल के दौर के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपको मोबाइल से ही मिलता है, बिकॉज एवरीवन इज़ यूजिंग एनीथिंग ऑन फ्रॉम देयर फोन। अगर कुछ बाय करना होता है, कुछ एक्सप्लोर करना होता है, कुछ देखना होता है, सो एवरीवन इज़ यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस। तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, अगर मैं इसको न्यूमेरिकली कुछ आइडेंटिफाई कर पाऊँ, तो आपको ऑन एन एवरेज आपका ट्रैफिक 60% और आई वुड से 60% ऑफ द ट्रैफिक कम्स फ्रॉम द मोबाइल. I would say 30% or 30% I would say comes from the desktop, and 10% comes from the other devices such as tablets or something like that. So सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक मिलता है आपको मोबाइल डिवाइसेस से ही मिलता है. Okay, जबरदस्त. अच्छा, नेक्स्ट सवाल है हुज़ैफ लगारी का, which who says कि does this course include ads on YouTube? YouTube ads भी क्या इस पे कवर होंगे? जी बिल्कुल होंगे इस कोर्स के अंदर. सिंस आई सेड अर्लियर कि गूगल का ही एक पार्टनर वेबसाइट है यूट्यूब, गूगल की ही एक सर्विस है यूट्यूब. तो जो भी गूगल एड्स के थ्रू एड्स रन किए जाते हैं, जो आपको यूट्यूब पे दिख रहे होते हैं, वो गूगल एड्स के थ्रू दिखते हैं. तो इसकी भी एक कैंपेन्स रन की जाती हैं, और इस कोर्स के अंदर हम यूट्यूब पे किस तरीके से कैंपेन्स रन करनी है वो भी डिस्कस कर रहे होंगे. ओके, Firnas, I'll take your question in a moment. अच्छा, Anas का question ये है कि my question is from Muhsin Saqib. As an agency owner in real estate niche, what are the pros and cons of Meta and Google Ads? What would be a better option? Basically, we bring leads from real estate agents. It could be buyer and seller. So
इसमें साकिब आई वुड लेट साकिब ऑब्वियसली वो यहाँ पे आंसर करें, मैं लेकिन अब एक मेरा सवाल एक्चुअली इसी के अंदर साकिब से, ताकि साकिब इसको बेहतर तरीके से केटर कर लें। साकिब, कैन वी गो हैंड इन हैंड विद गूगल एंड फेसबुक एट द सेम टाइम? सही है, ठीक है, हम बजट बाइफिकेट कर लें, हम बोलने के ज्यादा बजट फेसबुक पे जाए या ज्यादा बजट हमारा गूगल पे जाए और फिर एक पोर्शन, छोटा पोर्शन हमारा फेसबुक पे जाए। If we have tracking codes of Google and Facebook on the website, can we bring in traffic like laser targeted traffic, intent based traffic from keywords from Google and then maybe retarget them on Facebook to bring them back to the funnel? कुछ ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, और ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है कि आप गूगल और फेसबुक को हैंड इन हैंड चलाएं। इसकी मैं एग्जांपल शेयर करता हूं कि जैसे अगर मैं सर्च कर रहा हूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाय क्लोथिंग ऑनलाइन, ठीक है, मैं गूगल के ऊपर जाके एक कीवर्ड रिसर्च करता हूं और लेट्स सपोज दराज का एक ऐड अपीयर हो जाता है, ठीक है, तो मैं दराज की वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूं, दराज की वेबसाइट पे जाके क्लोथिंग कुछ भी देखता हूं और मैं बाउंस कर जाता हूं, दराज की वेबसाइट या ऐप को मैं छोड़ जाता हूं। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जब मैं फेसबुक या अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास दराज की रीटारगेटिंग एड्स अपीयर होने लग जाएंगे कि यू विजिटेड आवर वेबसाइट, तो आप ये देख लें, आपको आपके इंटरेस्ट बेस्ड आपको प्रोडक्ट्स दिखने लग जाएंगे कि आप उनको बाय कर लें। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आप गूगल और फेसबुक दोनों को हैंड इन हैंड चलाएं, ताकि आप हर तरीके से कस्टमर का हर टच पॉइंट्स जो भी हैं उनको आप टारगेट कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन अनस ने पूछा है इसके ऊपर मैं आंसर ये करूं कि मेटा और गूगल के ऊपर प्रोज एंड कॉन्स इस तरीके से होते हैं कि देखिए, मेटा के ऊपर अगर रियल एस्टेट है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इनको लीड जनरेशन कैंपेन्स रन करनी पड़ेंगी और इनको लीड उठानी है, तो मेटा के ऊपर लीड्स लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन लोग ज्यादा इसको प्रेफर इसलिए करते हैं कि थोड़े से अमाउंट के अंदर टारगेट कर ले, चल जाएगी कैंपेन, देख लेते हैं, लेकिन इस तरीके से होता नहीं है। आपको लीड जनरेशन कैंपेन्स अगर रियल एस्टेट के लिए करनी पड़ती हैं तो गूगल बहुत अच्छा टूल होता है, गूगल के ऊपर आपको अच्छी लीड्स मिल जाती हैं। हाँ, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही मिनिमम बजट के साथ आप लीड जनरेशन कैंपेन कर लें, क्योंकि लीड जनरेशन बहुत ही एक्सपेंसिव कैंपेन्स होती हैं, ठीक है। तो आपको अगर आपकी स्ट्रैटेजी ये होती है, आपके पास अच्छा बजट है, तो आप गूगल और फेसबुक को हैंड इन हैंड चलाएं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं विद फेसबुक एंड गूगल बोथ। लेकिन अगर आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं फॉर द लीड जनरेशन, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर पैसा है तो आप उसको इन्वेस्ट गूगल पे ज्यादा करें। अगर आपको लीड जनरेशन चाहिए, मेटा के ऊपर आपको इतनी इफेक्टिव लीड्स नहीं मिलती। सही, ठीक है, ओके। Head on to the next question by Firnas Atar Rahman, and he says, what is the best bidding strategy to go with exact match and phrase match? So just so that the audience knows, हमारे पास मल्टीपल बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके बारे में साकिब बता देंगे। तो इसमें सवाल ये है, आई थिंक इसको मैं आसान और थोड़ा सा इसको तोड़ देता हूँ दो एरियाज में। अगर बिल्कुल न्यू अकाउंट है तो क्या बिडिंग स्ट्रैटेजीज हम जा सकते हैं, एंड इफ इट्स एन अकाउंट जिसपे कुछ 1000, 2000, $5000 खर्च हो चुके हो, तो क्या हो सकता है इस केस में? ठीक है, देखिए, अगर आपका न्यू अकाउंट है तो इट्स बेटर कि आप मैनुअल बिडिंग के ऊपर जाइए, ठीक है, ताकि आप हर कीवर्ड के ऊपर मैनुअल बिडिंग कर सकें कि कितने कीवर्ड्स को डालना, किस कीवर्ड पे ऊपर कितना पैसा लगाना है, XYZ। और अगर आपका थोड़ा सा आपने स्पेंड कर लिया अपने अकाउंट के ऊपर, तो एक ऑप्शन होता है एनहांस CPC का, उसके ऊपर आपको जाना चाहिए, क्योंकि वो एनहांस CPC इज एन ऑटोमाइज्ड सिस्टम जो गूगल आपके हिस्टोरिकल डेटा को मॉनिटर करते हुए, आपके अकाउंट की स्टेबिलिटी को देखते हुए, आपके अकाउंट के स्पेंड को देखते हुए, आपकी बजट्स को आपकी जो भी कीवर्ड के ऊपर आप बिड करना चाहते हैं उसके ऊपर बाइफरकेट कर देता है। सो ये तो ये तो बिडिंग स्ट्रैटेजी हो गई कीवर्ड्स के लिए। अब इसके मल्टीपल और भी ऑप्शंस बिडिंग स्ट्रैटेजीज मिलती हैं। मैक्सिमाइज कन्वर्जन की भी एक बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है अगर आप कन्वर्जन कैंपेन्स रन कर रहे हैं। आपको टारगेट रोएस की भी बिडिंग स्ट्रैटेजी मिलती है अगर आपने एक स्पेसिफिक रोएस को हिट करना है। सो मल्टीपल बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ओके, अच्छा जीशान, मैं आपका वैसे ही सवाल का जवाब देता हूँ। मैंने अभी इस सवाल का जवाब दिया अभी था। जीशान इकबाल ये पूछ रहे हैं कि व्हाट मेक्स दिस कोर्स डिफरेंट देन अदर्स। सो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप गूगल से भी जाके कोर्स लेते हो ना, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। आई एम श्योर यहाँ पे साकिब भी मुझसे अग्री करेंगे कि उनका कोर्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, एंड ऑब्वियसली वो मेन सोर्स है आपकी पढ़ने के लिए। और किसी ने नहीं आपको रोका हुआ, किसी ने नहीं बोला कि यार
हम ये क्लेम करें कि दैट वी आर ऑफरिंग अ फंडामेंटली मोर स्ट्रॉन्गर कोर्स देन, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज दे हैव बिल्ट दिस प्लेटफॉर्म, दे नो देयर एल्गो, सो दे विल फंडामेंटली गिव यू मोर एग्जैक्ट, more precise information. The point over here is, the difference that is created over here is कि यहाँ पे साकिब will be sharing his experiences, his case studies that जो उन्होंने through trial and error सीख के चीजों को implement करके TCS IO Digital My Cart में सीखी. This is the difference over here. सही. And obviously साकिब का एक बड़ा नेटवर्क है, उनके पास पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके दोस्त, कोलीग्स वगैरह, तो उनके भी एक्सपीरियंसेस यहाँ पे होंगे, जो उनसे थ्रू नेटवर्किंग आपको पता चल जाता है, किसी के अकाउंट्स में आपने देख लिया, कभी आपने कुछ और एडजस्टमेंट्स बता दिए एंड ऑल दैट. तो दिस इज द मेन डिफरेंस दैट आई सी और आई फील दैट देयर इज ओवर हियर. सर, हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक की सर, हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक और वेबसाइट की सर्विस को सेल करने के लिए कौन सा ऐड चलाएंगे? अच्छा, इसके ऊपर आपको वेबसाइट ट्रैफिक, अगर आपको अपनी वेबसाइट, मैं क्वेश्चन पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो इनको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना है, तो ट्रैफिक लाने के लिए आपको ट्रैफिक कैंपेन्स रन करनी पड़ती हैं. एक ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाता है कि ट्रैफिक, आपको गूगल एड्स के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव आपको सेलेक्ट करना पड़ता है विच इज ट्रैफिक, और उसके बाद फिर आपको कैंपेन टाइप सेलेक्ट करनी पड़ती है कि सर्च कैंपेन के थ्रू करना है, डिस्प्ले कैंपेन करनी है, वीडियो एड्स के थ्रू करना है. तो ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको कीवर्ड्स की रिसर्च करनी है तो सर्च कैंपेन्स जानी पड़ेगी. बैनर्स, आपने कुछ किसी बैनर के थ्रू आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक डाइवर्ट करना है तो आपको डिस्प्ले कैंपेन्स करनी पड़ेंगी. तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन. एज मुस्तफा साहब का सवाल है, एज एन Amazon eBay seller, how important is Google Ads? We have seen amazing results via social media platforms such as TikTok, Meta, etc. ठीक है, देखें, अमेजोन और ईबे सेलर्स को, यू आर राइट कि इसके ऊपर सोशल मीडिया के थ्रू आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल जाते हैं. इसकी हम टारगेटिंग जो है गूगल एड्स के थ्रू भी कर सकते हैं. जैसे गूगल एड्स के ऊपर हम रीमार्केटिंग कैंपेन्स रन कर सकते हैं ताकि आप वीडियो एड्स को शो करा सकें, ताकि जो भी यूज़र आपकी वीडियो एड्स देखे वो यूट्यूब पे देखे या कहीं भी और देखे, तो वो आपके अमेजोन या ईबे स्टोर के ऊपर लैंड कर जाए. आपको कुछ ऐसे बैनर्स को, आई वुड से कि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आपको रीमार्केटिंग कैंपेन्स बड़ी अच्छी इफेक्टिव रन करनी पड़े तो आप वीडियो एड्स फॉर्मेट के ऊपर जाइए, उसके थ्रू आप ज़्यादा ऑडियंस को गेज कर पाते हैं. सो गूगल एड्स आपको, अगर आप अमेजोन या ईबे सेलर हैं तो आपको गूगल एड्स रीमार्केटिंग कैंपेन्स के ऊपर बहुत बेनिफिशियल होगा. अच्छा, मुस्तफा का एक और सवाल भी है कि क्या आप लोकल, एंड आई थिंक इसका जवाब ये है कि वैसे तो आई थिंक ही विल बी टॉकिंग मोर अबाउट लोकल केस स्टडीज, आई थिंक, बट साकिब आप खुद बता दें कि क्या आप लोकल सेलर्स जैसे दराज सेलर्स वगैरह को भी असिस्ट कर सकते हो कि व्हाट कुड देयर स्ट्रेटजी बी टू इंक्रीज देयर सेल्स वॉल्यूम ऑन दराज एज सप्लायर? फॉर श्योर हम लोकल की अगर एग्जांपल लें तो अगर आप दराज के ऊपर आपका एक स्टोर है, सो एज आई सेड अमेजोन और ईबे सेलर्स को तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं कि मैंने भी अपने बहुत सारे कुलीग से सुना है, दे आर वर्किंग ऑन अमेजोन और ईबे, कि उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ट्रैफिक मिल जाता है सोशल मीडिया के थ्रू. तो दराज के जो भी सेलर्स हैं उनको भी इसी तरीके की कैंपेन्स रन करनी पड़ती हैं. इंटीग्रेटेड, जैसे मुइज ने पहले बताया, इंटीग्रेटेड कैंपेन्स जब भी रन करेंगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है कि फेसबुक पे भी आपका ऐड हो, आपका गूगल के ऊपर भी, आप कस्टमर के एवरी टच पॉइंट्स के ऊपर अपने एड्स को विजिबल करें तो आपको एक अच्छी कैंपेन, आपकी एक अच्छी बेनिफिशियल और बहुत अच्छी हाईली कन्वर्जन कैंपेन आप बिल्ड कर सकते हैं. अच्छा, मैं इधर एक बात ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी अमेजोन सेलर्स बैठे हुए फॉर देयर बेनिफिट, आप लोग को ब्रांड रजिस्ट्री का पता होगा, जिसका भी ब्रांड रजिस्ट्री हुई हुई है, दे हैव एन ऑप्शन टू ऑप्ट इन फॉर अमेजोन एट्रीब्यूशन. सही है. अमेजोन एट्रीब्यूशन क्या है कि आप जो UTM ट्रैकर लगाते हो ना फॉर ट्रैकिंग योर सेल्स बैक टू बैक, कि आपके पास कौन से चैनल से ट्रैफिक आया और फिर वो कन्वर्ट, वो एफर्ट किस चैनल की थी जहाँ पे सेल एट्रीब्यूट हुई. तो आपके पास अमेजोन एट्रीब्यूशन का एक वो होता है, डैशबोर्ड होता है, जहाँ पे आप ये अपने UTM बेसिकली बना सकते हो और अटैच कर सकते हो अपने
किसी भी लिंक के साथ, Amazon आपके किसी भी प्रोडक्ट लिस्टिंग के साथ आप उसको अटैच कर सकते हो। उस लिंक को आप कहीं पे भी यूज करोगे, फॉर एग्जांपल फेसबुक या गूगल एड्स से आप डायरेक्टली ट्रैफिक भेज रहे हो, एंड इफ दैट सेल, मैं ये बात क्यों ला रहा हूँ एक्सक्यूज मी, मैं ये बात इसलिए रहा हूँ बिकॉज आप गूगल और फेसबुक ट्रैकिंग अपनी वेबसाइट पे नहीं लगा सकते, सॉरी Amazon पे नहीं लगा सकते, माय बैड, आप Amazon पे नहीं लगा सकते। तो Amazon ने बेसिकली एक तरीका निकाला हुआ है जिसके थ्रू जो है ना आप अपना लिंक जनरेट करके ट्रैकिंग का, और आप अपने जो है ना जितने भी मीडिया बाइंग प्लेटफॉर्म्स हैं या ऑर्गेनिक वो चैनल्स हैं उस पर अगर आप लगाते हो और कोई सेल अगर कंट्रीब्यूट होती है तो वहाँ से आप जो है ना ट्रैक कर सकते हो Amazon के डैशबोर्ड से कि वेदर नॉट दैट उस किस चैनल ने वो एफर्ट के थ्रू लाई है वो सेल। The next question is by excuse me, would you also be covering Google shopping ads in this course? गूगल शॉपिंग एड्स के बारे में हम डिस्कवर ज़रूर करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली शॉपिंग एड्स आर नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, तो हम उसकी लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं देख पाएंगे कि किस तरीके से शॉपिंग एड्स विजिबल होते हैं। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको कुछ केस स्टडीज़ दिखा सकूं, बिकॉज इन माई करंट रोल एट TCS हम शॉपिंग कैंपेन्स भी रन करते हैं। उसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस तरीके से शॉपिंग कैंपेन्स रन की जाती हैं, गूगल मर्चेंट सेंटर का क्या रोल है इस कैंपेन्स के अंदर, और किस तरीके से आप अपने कैटलॉग को प्रमोट करते हैं, अपनी फीड प्रमोट करते हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन द कोर्स एज वेल। ठीक है, अच्छा guys, I'm going to wrap it up now. The campaign to write its fate and give a judgment. Okay, Firnaz का ये लास्ट सवाल ले लेते हैं, then we will have to wrap things up. Okay, what is the minimum time for Google and campaign to decide its fate and give judgment to it and start taking shots? अच्छा देखें, मिनिमम टाइम एज सच कुछ होता नहीं है। जितनी आप कैंपेन को मैच्योर होने का मौका देंगे उतना बेनिफिशियल होता है। वैसे एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि यू शुड गिव अ कैंपेन 7 to 14 डेज एटलीस्ट, ताकि वो अपने बजट्स के ऊपर अपनी ऑडियंस के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर जाए। अगर आपने इसके अंदर ट्वीकिंग्स करते रहे तो आपकी कैंपेन का लर्निंग पीरियड बढ़ता चला जाएगा, एक्सटेंड होता चला जाएगा, और आपकी कैंपेन मैच्योर होने में टाइम लेगी। सो इट्स बेटर कि आप अपनी कैंपेन को एटलीस्ट 7 to 14 डेज उसको स्टेबलाइज होने दें, उसके बाद उसके रिजल्ट्स आपको दिखने लग जाएंगे। I think I've answered it pretty well now. Okay guys, we're off now, and again thank you so much for and thank you Saqib for having you with us on this particular session. Thank you. And inshallah ta'ala, I hope that we see more of Saqib discussing more about Google ads and other strategies in future. And really pleasure having all of you guys with us on this session, and inshallah taala हम लोग इस तरह के और सेशंस कर रहे होंगे। अगर आप लोग को साकिब के अपकमिंग ट्रेनिंग जो पूरा कोर्स है, ट्रेनिंग जो हो रही है प्रोग्राम की, अगर उसमें आप लोग को पार्टिसिपेट करना है, ऑल यू गाइस नीड टू डू इज गो ऑन ec.com.pk/google-ads with an S, and that's that. चलें, ओके, इंशाल्लाह ताला until next time, thank you everyone again. फिर आप लोग से मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।